Welcome to study panel. This is Didi Jala from KV Drangadra. In today's video, we shall start the last part of chapter 4, parts and wholes, and it is our ninth part. If you have not seen part 8, you can click on a link over here. By clicking on the link, you can watch it. Now, in this video, we shall discuss Kirti's shopping list on page number 69, word problems by cross multiplication method or a unitary method on page number 69, and practice time on page number 70. These all three things we are going to discuss in this video. Let us start with the Kirti's shopping list. See, dear students, if you have not subscribed our channel, please subscribe it. If you feel that this video is useful to you, please do share with your friends and please like the video. Let us start with the question. Kirti's shopping list. See, this is a price list. Now what Kirti wants to buy? Let us see. Look at the yellow price list. This is a price list. It is a price in rupees per kg. Now tomato is rupees 12 per kg, potato is 10 per kg, onion is 16 per kg, carrot is 18 per kg, and gourd is rupees 8 per kg. Now how much does 2 kg tomato cost? Now first of all we need to understand the question very clearly. Here we need to find out how much does 2 kg tomato cost. Now for 1 kg tomato we have got a price over here. Now from this we will find out the cost for 2 kg tomatoes. Let us see. See, total we are having a two quantity. One is kg, that is tomato, and one is rupees, that how much amount we need to pay for the 2 kg tomatoes. Now 1 kg tomato cost, see 1 kg, price of 1 kg tomato is equal to rupees 12. We have taken this 12 from here. Now we need to buy tomatoes of with quantity 2 kg. So price of 2 kg tomato is equal to question mark. This question mark we need to find out as an answer. So whatever number we'll get here, that will be our answer. So let us do that. So we'll cross multiply these two numbers. See, in my regular class I used to tell the students that this is our first floor, this is our ground floor. So this ground floor party will do the first floor, and this ground floor will be multiplied with first floor, and the first floor will be multiplied with the ground floor. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये यहाँ से क्रॉस होके इधर जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से क्रॉस होके इधर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा. Like this we can say this. See, we have done this 2 kg into 12, 2 into 12, 1 into question mark. Now this is very simple. In earlier videos, if you have watched very clearly, I have said that if any number is divided by 1, so there won't be any change in the value of that number by which it is divided. Let us see. 12 2s are 24. क्वेश्चन मार्क के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा. सो दिस इज 1 का यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है. सो द आंसर विल बी रुपीज 24 रुपीज कीर्ति को पेमेंट करना पड़ेगा. किसके लिए? फॉर 2 kg tomatoes. So 24 is the correct answer. Let us move on to the next. How much does half kg of tomato cost? See, 1 kg of tomato is 12 rupees. So what is half of 12? What is half of 12? Obviously it is half of 12 is 6 rupees. Now, but see students, many a times we are orally we can say answer, we can do a mental math and complete our answer, but it is always advisable to follow this particular process to find out the answer. See, here also we will follow the same process. देखो हमने सारे चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक जितने भी वीडियोस किए हैं उसमें जहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इस सेम मेथड से ही किया हुआ है ना. तो आप कोशिश करिए कि कोई एक मेथड को पकड़ के रखे. ठीक है. नाउ 1 kg टोमेटो कॉस्ट रुपीज 12. This we have taken from this board of vegetables. Now, so half kg tomato cost, simple. Now this will go to the first floor. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ. नाउ व्हाट इज विथ अस? हाफ इनटू 12. अब देखो यहां पर कंफ्यूजन होगी. क्या कंफ्यूजन होगी वो मैं बता देता हूं. हम पेन लेके ही सिलेक्ट कर लेते. देखो अब यहां पर तो ये वाला नंबर भी फ्रैक्शनल है और ये पूरा भी फ्रैक्शनल वैल्यू है.
क्योंकि ये ऊपर है नीचे है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, और उस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर ये अगेन न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमारा रूल क्या था, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बस हमारा सिर्फ यही रूल है। तो हमने वो कर दिया, ये हाफ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है 1 इंटू क्वेश्चन मार्क, इसकी कोई जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है, तो जो नंबर 1 से डिवाइड होगा वो ये वाले नंबर में कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा नहीं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा, हाफ इंटू 12 बच गया। मैंने आपको अगर इफ यू हैव वॉच आवर वीडियो ऑल आवर वीडियोस फॉर दिस चैप्टर, यू कैन इजीली से दैट व्हेन आई टोल्ड यू हाफ इंटू 12, देन एट दैट टाइम हम यहाँ भी 1 नीचे रख देते थे। क्यों, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है डिवीजन करने के लिए और दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह करेंगे, 1 इंटू 12 एंड 2 इंटू 1। सो हमारा 12 1 जा 12 एंड 2 1 जा 2। अगर इसको डिवाइड करेंगे देन आंसर विल बी 6, है ना। यहाँ पर एक स्टेप जो नहीं है वो स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला स्टेप यहाँ पर आ गया, ठीक है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण wants 2.5 kg of tomato. How much will it cost? See, किरण को जो है कितना टोमेटो चाहिए हम देख लेंगे, उसको चाहिए 2.5 kg। ओके, नाउ द प्राइस ऑफ टोमेटो इज, सबको टोमेटो ही चाहिए, द प्राइस ऑफ टोमेटो इज ₹12। सो वी नीड टू फाइंड आउट फॉर द प्राइस ऑफ 2.5 kg of tomato. So let us see, 1 kg tomato is 12, yes it is clear. So 2 kg tomato हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था अर्लियर, बट विल फॉलो द सेम प्रोसेस। दिस विल गो टू द फर्स्ट फ्लोर एंड दिस विल गो टू द ग्राउंड फ्लोर। सो इट हैज गॉन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। वी कैन सी 2, ये 2 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। ये 1 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है। ओके, नाउ 2 12 जा, इट इज 2 12 जा, ये 1 का तो नीचे कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली हटा दिया यहाँ से, है ना। क्योंकि ये 1 इसके, हम अगर इसके आगे का स्टेप अगर हम लोग देखना चाहे, अगर किसी को लग रहा है कि इसके आगे का स्टेप क्या होगा, तो सिंपल होगा, यहाँ हो जाएगा 24 2 और 1 इंटू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 1। तो आंसर ये हमारा फिर यही आएगा 24। हमने ये डायरेक्ट 1 को इसके साथ ही डिवाइड कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड होगा तो 1 का कोई नीचे जो 1 है उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज होने वाला है नहीं। सो वी हैव डिवाइडेड इट एंड वी हैव रिमूव्ड दिस वन, वी हैव रिमूव्ड दिस 2, बट देयर इज नो यूज ऑफ दिस। 2 into 12 हमारे पास ये वाला रह गया, so 2 12 is 24. Now see, dear students, if you know that we have got the answer for only 2 kg. Now again half kg we need to find it out. So we'll do it the same thing. 1 kg tomato cost ₹12. So half kg is question mark. Simple. This will go to the first floor and this will go to the ground floor. Let me take the laser. Yes, good. See, like this we have done. सो हाफ इंटू 12 कर दिया, ये 1 इंटू क्वेश्चन मार्क जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी आएगा, लेकिन हमने क्या किया, वो क्वेश्चन मार्क को हटा ही दिया, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हटा ही देते हैं। सब में नहीं हटाना यहाँ, क्योंकि कुछ नंबर्स, ये देखो मैं ये पूरा प्रोसेस इसलिए चल रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो फर्स्ट चैप्टर में हमारा था द फिश टेल में, कुछ देयर वर सम क्वेश्चन हियर यू कैन फाइंड एनी अदर नंबर देन 1, एक से कोई अलग नंबर मिलेगा तो वो डिवाइड होगा, एक होगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन कोई और नंबर होगा, एक से हटके कोई और नंबर होगा तो उसको नीचे रखना है, डिवाइड करना है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। बाकी हम लोग डायरेक्ट 2 into 12 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन हम लोग ये प्रोसेस क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर कोई और नंबर यहाँ पर आ गया तो हमें उसको डिवाइड करने के लिए नीचे रखना है, ताकि हमें जो पूरा प्रोसेस क्या है वो पता चलेगा। ओके, नाउ विल मूव ऑन। 1 kg टोमेटो कॉस्ट 12 rupees, so half kg is 6 rupees, so this is 6 rupees. Now how much amount needs to pay by Kiran? Let us see. This is 24 for 2 kg and 6 for half kg tomato. So 2.5 kg tomato cost, this is 24 plus 6, so the total 30 rupees Kiran has to pay for 2.5 kg of potatoes. D. How much does 3.5 kg of potato cost? चलो ठीक है, टोमेटो तो गया, पोटैटो आया। How much does 3.5 kg potato cost? See, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो एक सिंपल है, 3.5 kg आया ना, ये हमारे पास है 3.5, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, दोनों का कैलकुलेशन अलग करेंगे ना तो हमारे आंसर कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा ही यहाँ पर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द प्राइस फॉर द 3 kg ऑफ पोटैटो। लेट अस सी, 1
kg पोटैटो इज इक्वल टू ₹10, वो तो हमने यहां से लिया। ये देखो 1 kg कहां से आया तो पता है, ये 1 kg का प्राइस है, लिखा है सी। सो वी हैव टेकन 1 kg पोटैटो कॉस्ट ₹10 एंड 3 kg पोटैटो कॉस्ट क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता करना है। सिंपल, हम लोग ये वाला जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, ये वाला जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 3 इंटू 10 और ये 1 जो है हमारा, ये 1 आ गया नीचे, सो 1 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे तो ये जो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। नाउ हाफ के जी के लिए, अब हाफ के जी तो सिंपल है, 1 kg का 10 है। If the price of 1 kg potato is ₹10, so what will be the price of half kg potato? It will be obviously half of this 10. So half of 10 is 5. But we'll follow this whole process. 1 kg potato cost ₹10 and half kg potato question mark. Now again this will go to the first floor, this will go to the ground floor. Ground floor इसलिए है, first floor ground floor कैसे होता है पता है? अगर हम लोग यहाँ पर लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचेंगे, तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया हमारा, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, है ना, बाकी कुछ नहीं है। Okay, now half into 10, so this will go to the first floor, so half into 10, ये 1 नीचे आएगा तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने उसको लिया ही नहीं है यहाँ पर। so half into 10 is equal to क्या हो गया, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। देखो हमने आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में half into 10, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हमने 1 रख दिया। after that we will bring all this under one roof, that is 1 into 10 and 2 into 1. again we'll do 10 ones are 10, 2 ones are 2. Again we'll do 5 twos are 10 and 2 ones are 2. Now see, we'll cut this. कट कर दिया इसको हमने। अब कट करने के बाद क्या करना है, हमारे पास बचा क्या, 5/1, इतना ही बचा हमारे पास। 5/1 जब हमारे पास बचा है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर जो 5 है वो करेक्ट आ गया। ठीक है, okay, move on to the next question. Okay, good. Now what is the price of 1 and 1/4 kg of carrot? See, again यहाँ पर सेम चीज है, 1 and 1/4, we'll separate this 1/4 को हम अलग कर देंगे, ये 1 को अलग कर देंगे। first we'll find out the price for 1 kg। 1 kg पोटैटो का, सॉरी 1 kg कैरेट की प्राइस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, it is ₹18। so 1 kg कैरेट कॉस्ट ₹18 हो गया। 1/4 का कितना होगा, 1/4 of 18, 1/4 of 18 क्या होगा पता है आपको, ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। 1/4 of 18 अपॉन 1/4 into 18, now 1/4 into 18 upon 1 will bring under one roof, that is 1 into 18 and 4 into 1, so this will come 18 divided by 4। अब देखो ये डिवीजन करना मुश्किल है क्योंकि पॉइंट वाला डिवीजन आ गया। जब ऐसा होता है ना तो एक चीज और करना, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, sorry the 4 will not come here, here it will come 2, so it is 2 into 2, ये 2 कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 9/2 बच गया। हाँ, जो अगर if any number is divided by 2 that means we'll make the half of it, that is 4.5, or you can also say 4.5, both are correct answer। so 1/4 of 18, ये वाला तो हमें हटा ही देना है क्योंकि नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको तो हम हटा ही देंगे सीधा। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 1/4 of 18, तो ये वाला 1/4 of 18, देखो ये पूरा प्रोसेस हमारा फॉलो होगा, लास्ट में हमारा आंसर आएगा ₹4.5। अब हमें ऐड करना है, क्यों, किसको ऐड करना है, ये 18 रुपीज को और ये 4 रुपीज को ऐड करना है। विल ऐड इट, क्योंकि हमें 1 and 1/4 kg कैरेट चाहिए, so we'll add it। see, I'll rub this for you, so okay, it is rubbed। now ₹18 plus ₹4.5, so our total answer is ₹22.50, 22 and half। yes, now he bought a gourd of weight 4 and 3/4 kg। see, 4 and 3/4, ये 4 अलग हो गया, ये 3/4 अलग हो गया, इसका अलग कैलकुलेशन करेंगे, इसका अलग कैलकुलेशन करेंगे। गुड, ओके, नाउ विल फाइंड आउट द कॉस्ट फॉर इट। सी 1 kg gourd costs ₹8। see, it is price written over here, so 1 kg gourd cost is equal to ₹8। so 4 kg का प्राइस कितना होगा, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर सेम चीज हम लोग फॉलो करेंगे। सी हो सकता है शुरू में आपको ये चीज
करने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो है समस्या हल हो जाएगी। ओके, 1 kg गॉड, देखो हमने सारी चीजें कहाँ से लिए, क्वेश्चन से लिए, ये हमें आंसर पता करना है। क्वेश्चन से क्या क्या लिया है, देखो 1 kg गॉड कॉस्ट ₹8, कहाँ से लिया 1 kg, ये रहा पर केजी मतलब 1 kg, और 8 रुपए हमने लिए यहाँ से, 8 रुपीज यहाँ से लिए। अब 4 kg कहाँ से लिया, 4 kg क्वेश्चन में लिखा है तो 4 kg वहां से ले लिया हमने। अब ये वाला तो हमें आंसर तो फाइंड आउट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट आंसर, सो विल फाइंड इट आउट। सो 4 into 8 कर दिया हमने, और ये आ गया ग्राउंड फ्लोर पे 1 into क्वेश्चन मार्क। नाउ इसको तो हमने हटा दिया क्योंकि 1 को डिवाइड करने से कोई इसमें चेंज होगा नहीं, तो इसको हटा दिया। अब हमारा आंसर क्या हो गया, 4 8 हो गया 32, यानी हमारा 4 kg के लिए जो आंसर था वो हमारा आ गया 32। अब हमें किसके लिए पता करना है, 3/4 kg के लिए। सी दिस इज 1 kg गॉड इज इक्वल टू 8, अगेन यहां से हमने लिया, डन। सो 3/4 kg इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये गया फर्स्ट फ्लोर पे, ये गया ग्राउंड फ्लोर पे, हम लोग इसको आगे लेते हैं 3/4 इंटू, देखो ये 1 नीचे आएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आएगा 1 into क्वेश्चन मार्क आएगा, हम लोग नहीं ले रहे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिवाइड करके हमें इसको हटाना ही है, तो इसको लिखने का भी कोई मतलब रहेगा नहीं, तो हम लोग इसको लिखते नहीं है। नाउ सी 3/4 of 8 is ₹6, कैसे, सपोज हमारे पास 6 है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। अब इसका 3/4, इसका हाफ कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 इसका हाफ हो गया, ये वाला हाफ हो गया ना, ठीक है। तो 3/4 हमें लेना है, तो टोटल ये भी तो लेना पड़ेगा 2 और, 4 plus 2 is equal to 6। okay, so 3/4 of 8 is ₹6। now total amount he has to pay for 4 and 3/4 kg god is equal to 32 plus 6, that is 38, this much amount he has to pay for this. Now we'll move on to next question. Look at the shopping list in Kirti's hand. So this is a shopping list in Kirti's hand. How much will she have to pay to buy all this? उसको ये सब खरीदना है, potato 2 and 1/4 kg, carrot 3 and 3/4 kg, gourd 1.5 kg. Let us see. See 1 kg potato we have taken here. kg यहाँ से ले लिया, per kg means 1 kg. 1 kg का भाव कितना है, ₹10। so उसको कितना खरीदना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 and 1/4 kg, 1/4 को हमने अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट फॉर 2 kg, 2 kg का फाइंड आउट कर दिया, ये गया फर्स्ट फ्लोर पे, दिस हैज गॉन टू द ग्राउंड फ्लोर। ओके, नाउ दिस इज 2 into 10, दिस इज 1 into क्वेश्चन मार्क, सो इसको हटा देंगे क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो हमारा हो गया 2 into 10, 2 into 10 is equal to 20 रुपीज। नाउ हमें 2 किलो पोटैटो का पता लग गया, अब कितना पता करना है, 1/4 kg का। सी 1 kg potato cost ₹10, 1/4 kg potato cost क्वेश्चन मार्क। सो सेम फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, ये गया फर्स्ट फ्लोर पे, ये गया ग्राउंड फ्लोर पे। अब हमारे पास क्या बच गया, 1/4 into 10, यहाँ ये भी बचेगा क्या, 1 into क्वेश्चन मार्क, लेकिन हम लोग उसको लिख नहीं रहे क्योंकि डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो हम लोग उसको लिख नहीं रहे। ओके, नाउ सी 1/4 of 10 कितना होगा, 2.5 और 2.5 रुपीज, है ना। 10 का जो है 1/4 हम लोग निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा, 2.5। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, 10 plus 2.5। ओके, yes, 20 plus 2.5, okay, yes, it is 20 for this is for 1 kg potato, for 2 kg it is 20 plus 2.5, it is 22.5 rupees Kirti has to pay for 2 and 1/4 kg potatoes. Good. Now look at the shopping list in the Kirti. Now the second question, carrot के लिए हम काउंट करेंगे, it is carrot कितना बाय करना है, 3 and 3/4 kg, so ये हो गया, this is a different and this is different। ये अलग क्यों कर रहे हैं पता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, होल नंबर है, तो इसको अलग करेंगे। होल नंबर क्या है, वो आगे क्लास में हम लोग इसको कहेंगे कंप्लीट नंबर है, जबकि ये फ्रैक्शन है, वो कंप्लीट नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, नाउ 1 kg कैरेट कॉस्ट ₹18 and 3 kg कैरेट कॉस्ट क्वेश्चन मार्क। So again the cross multiplication, this will go to the first floor and this will go to the ground floor. So here we will get 18 3s, इसको तो हमें हटा देना है, ये 3 ऊपर गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 नीचे आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको हटा देंगे क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से हमें कुछ आंसर नहीं मिलेगा, 1 ही रहेगा, और 1 को डिवाइड करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं है। सो 18 3s is ₹54। so for 3 kg carrots we need to pay ₹54। now we will find out for 3/4 kg carrots। 1 kg carrot cost ₹80, 3/4 kg, again this will go to the first floor and this will go to the ground floor।
सेम चीज इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके डिवाइड करने से कुछ चेंज होने वाला है नहीं। नाउ से 3/4 into 18, इफ वी मेक total 3/4 part of this 18, we will get 13.5. Why 13.5? What is half of 18? 9. इसका हाफ कितना हो गया? 9 का भी हाफ कितना हो गया? 4.5. तो हमें 3/4 चाहिए ना, तो 3/4 मतलब एक तो लेंगे हम 9 और एक उसका भी हाफ लेंगे, मतलब 4.5. सो आवर टोटल आंसर इज 13.5. क्लियर है ना? ये देखो हमने 3/4 दिया, ये तो हो गया हाफ. 3/4 कब होता है? हाफ प्लस 1/4, है ना? 3/4 कब होता है? जब हाफ और हम 1/4 को ऐड करते हैं तब हमारा आंसर 3/4 होता है. तो हमने ये क्या किया, ये 9 जो है हमारा हाफ है, किसका हाफ है? 18 का. और ये जो है 4.5 वो 1/4 है, किसका? 18 का. सो वी हैव एडेड दिस. सो हमारे पास जो आंसर हो गया दैट इज 3/4, और 18 का 3/4 कितना होता है? 13.5. नाउ वी विल ऐड दिस 54 एंड 13.5. सो आवर आंसर इज सिंपल एडिशन, इट इज 67.5. हाँ, यहाँ पर ये जो है पोटैटो का, ये कैरेट आएगा. यस, गुड. हाँ, नाउ लास्ट वन, गॉड 1.5 kg. लेट अस सी. 1 kg कॉस्ट 8 रुपीज हो गया. हाफ kg का कितना होगा? हाफ ऑफ 8 इज रुपीज 4. सेम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, ये हमें हाफ तो पता ही है सबको 8 का, इसीलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं कर रहे. इट इज 4. सो अब हमें क्या है, 1.5 kg चाहिए, 1.5 kg चाहिए. तो ये 8 जो है 1 kg का प्राइस है वो हमने यहाँ लिख लिया, ये 4 kg हाफ का प्राइस यहाँ लिख लिया. टोटल 12 रुपीज वी हैव टू पे फॉर दिस. आई थिंक वी आर वेरी क्लियर टिल हियर. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन क्या है कि इन सबको एक ही वीडियो में कवर करना बहुत जरूरी है. ओके, नाउ मेक अ बिल ऑफ योर ओन वेजिटेबल्स you want to buy. Find the total money you have to pay. Now see, इसके हमें खुद का बिल बनाना है. मैंने यहाँ एक बिल बनाया हुआ है, लेकिन आपको अपना खुद का बिल बनाना है. ठीक है, कि यहाँ आइटम क्या है और उसकी पर केजी प्राइस कितनी है और उसका अमाउंट टोटल हमें कितना देना है. सपोज देख लेते हैं, जैसे पोटैटो है, हमें 2 kg खरीदने हैं और 1 kg का प्राइस है हमारा कितना है? 20 रुपीज है. तो 1 kg का प्राइस अगर 20 रुपीज हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 20. हमने टोमेटो खरीदा 1 kg और उसका प्राइस है 15 रुपीज. Carrot, we have bought half a kg carrot and the price per kg is rupees 30. We have also bought a cabbage 1 kg and the price of cabbage per kg is rupees 8. We have also bought gourd, the 2 kg gourd and the price of gourd per kg is rupees 9. Now we'll multiply, इसका टोटल करेंगे 2 into 20, so 40 रुपीज देने पड़ेंगे हम पोटैटो के लिए. 1 into 15, so 15 ones are 15, so we'll give 15 rupees for this tomato. See, half. Here you need to pay attention. Half हमें देना है. So half of 15 is half of 13 is 15 rupees we need to pay over here. 1 kg cabbage, it cost rupees 8 per kg. So 1 into 8 is equal to rupees 0.8. See, यहाँ पर मैंने यहाँ 0 आगे लिखा है. इसका रीजन क्या है पता है? हम लोग जब किसी भी चीज को ऐड करते हैं ना, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं पता है? एडिशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं हम लोग, है ना? तो जब इस तरह हम लोग जाते हैं ना, तो अगर 8 यहाँ पर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर. इसलिए मैंने यहाँ 0 ऐड किया. किसी भी नंबर के आगे अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस इन देम. ओके, नाउ सी, वी हैव बॉट 2 kg gourd and 1 kg costs rupees 9. So 2 9s are, it is 18. Now we'll add this. इसका ऐड करेंगे सिंपल. Then we have to pay rupees 96 rupees we have to pay in total. Now move on to the next last question. Rahim's journey. Rahim has to travel 1 1/4 kilometer to reach school. See, in maths most of the problems are due to we are not reading the questions properly. So you need to read question very carefully till you get the clear idea about what is asked and what you have to answer. What distance does he travel to go to school and come back home? अब देखो ये जो है उसका होम है. ठीक है, हम इसका घर बना देते हैं. ये उसका घर हो गया. नाउ दिस इज एक स्कूल बना देंगे बड़ा वाला उसके लिए. दिस इज स्कूल. This is school. Okay, now we have made here it is a school and this is home. See, now Rahim has to travel, means Rahim is traveling
from home to school and the distance between these two places is 1 and 1/4 kilometer. Now what distance does he travel to go to school, यानी स्कूल से होम से स्कूल जाने के लिए, and come back, यानी वापस भी तो उसको इतना चल के आना है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसका जो है टोटल क्या होगा। देखो पहले तो ये दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/4 एंड 1/4, तो इसका अलग कैलकुलेशन होगा। ये 1 + 1 तो सिंपल है, हमें पता ही है 1 + 1 कितना होता है, 2 किलोमीटर हो गया ये तो, है ना, ये तो पता ही है। अब ये 1/4 + 1/4, 1/4 + 1/4 ना 1/4 प्लस जब हम कोई भी दो 1/4 को ऐड करते हैं तो आंसर होता है हमारा हाफ। जब भी कोई 1/4, जैसे ये एक सर्कल है, अगर हम लोग ये दोनों 1/4 को ऐड करेंगे, ये वाले दोनों, ये एक 1/4 है, ये एक 1/4 ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सर्कल का कितना हो गया, हाफ। तो जो उसको ट्रैवल कितना करना पड़ेगा, 2.5 किलोमीटर। आना जाना दोनों यहां पर कैलकुलेट होगा। लास्ट क्वेश्चन, लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज। सी, लता ने पेंसिल और पेन बाई किया कितने में, 7.5 रुपीज में बाई कर लिया उसने। यस, शी गेव ₹10, उसने शॉपकीपर को कितना दिया, 10 रुपीज दिया। द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन, शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ, यानी हाफ एंड क्वार्टर मतलब 1/4 रुपीज, यानी उसने क्या किया, या तो 50 पैसे, हाफ ऑफ 1 रुपी क्या हो गया, 50 पैसे हो गया, और 1/4 ऑफ 1 रुपी क्या हो गया, 25 पैसे हो गया, है ना। तो उसने किस में चेंज में दिया है। अब देखो उसके पहले पैसे कितने बचते, 10 रुपए की चीज, 10 रुपए उसके पास थे, और उसने चीजें खरीदी कितने की, 7 रुपए और 50 पैसे की, है ना। तो अब इसका अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा पता है, हमारे पास आंसर आएगा ₹2 and 5, यानी 2 रुपए, 2 रुपीज एंड 50 पैसा, और 2.5 रुपीज हम लोग इसको कह सकते हैं। अब उसने ये जो पैसा है उसमें चेंज क्या दिया, एक या तो उसने 50 पैसे के चेंज दिए या तो 25 पैसे के चेंज दिए, दोनों में दिया है। अब किसके कितने कॉइन मिलेंगे, सी, ये जो हाफ है ये तो 50 पैसे का हम लोग कर देंगे, ये 50 पैसे का एक कॉइन कर दिया हमने, तो ये चला गया यहां पर। अब ये 2 रुपीज है, देखो उसने क्वार्टर भी दिया है, तो क्वार्टर मतलब क्या है, हम लोग 25 पैसे वाले भी ले सकते हैं। टोटल याद रखना है हमारे पास कितने पैसे हैं यहाँ पर, 2.5 रुपी को अगर हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 250 पैसे। बस 250 पैसे क्रॉस नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एक 25 पैसे का कॉइन दिया, ठीक है, एक अगेन 25 पैसे का कॉइन दिया। अब टोटल करो, इसका कितना हो गया, 100 पैसे हो गया ना। अभी हम छोटे हैं तो हमें और 250 तक जाना है ना, 250 तक जाना है, तो हम उसने और एक 50 पैसे, आप यहाँ चाहे तो 25 पैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 50 पैसे का दे दिया। अब कितना हो गया, 100 + 100 ये हो गया, तो अभी हो गया ये 200 पैसे, 200 पैसे दे दिए। हमें कहाँ तक जाना है, 250 पैसे तक जाना है। हम लोग क्या करेंगे, और चले जाते हैं। अब 20 इसको कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से, है ना, चलिए नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए ओके, 25 पैसे ले लेंगे, 25 पैसे, 25 पैसे ले लिए ऐसे। अब हमारा कितना हो गया, 25 + 25 50, और 200 ऊपर के, सो टोटल हो गया 250 पैसा इज इक्वल टू 2.5 रुपीज हो गया। तो इसमें देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, आप चाहे तो सभी 25 पैसे के भी दे सकते हैं, सभी 50 पैसे के दे सकते हैं, आधे इसके आधे उसके, उसी तरह दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आई होप ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज करिए ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।